Hi guys, so welcome to part 2 of economic current affairs. Part 1 we have covered on last Sunday, so I hope every one of you must have seen the video. So continuing that part, today we will be starting part 2 of our economic current affairs. These current affairs are for UPSC as well as for other state services examinations, right? So as I told you in part 1 also, ki now the civil services prelims examination has been postponed, so I'll be covering these current affairs in some details instead of only. So the whole perspective of these current affairs is not only prelims examination but also mains examination. So from mains point of view also, we are going to analyze these economic current affairs, right? So let's start with our part 2. So first of all, I'll go with report on currency and finance 2020-21। ये किसने निकाली है रिपोर्ट आपकी? सबसे पहले तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड दिस फुल फॉर्म इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही बेसिक चीज थी, फिर भी मैंने आपको एड ऑन कर दिया है, ठीक है। जो रिकमेंडेशन है इस रिपोर्ट का इज कम आफ्टर अ पीरियड। इस पूरी रिपोर्ट का जो मेन पॉइंट है इज द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन targeting, right? So the whole objective of this report is inflation targeting. तो ये जो recommendation है, when the inflation target constantly touches upper end of 6%, say headline inflation target for several months, like say when I talk, we have already discussed that the inflation target is for plus minus 2%, right? So the minimum should be 2% and maximum should be 6%. So from since COVID-19 we have seen that inflation has been almost near to 6%. So at that point of time जब ये 6% almost touch कर चुका है, तो तब ये रिपोर्ट आई है। तो इसके कुछ की सजेशंस हैं जो आप लोग थोड़े से याद रखना अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के आंसर में आपको थोड़ा सा यूटिलाइज करने को मिलेगा। जहां भी इन्फ्लेशन के आधार पर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी अगर इन्फ्लेशन या फिर जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मुद्रास्फीति के आधार पर अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मेक श्योर कि आप इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन जरूर लिखोगे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट बोलती है द फेलियर कैन बी रीडिफाइंड एज इन्फ्लेशन ओवरशूटिंग और इन्फ्लेशन अंडरशूटिंग द अपर एंड लोअर टॉलरेंस अराउंड द सेट टारगेट फॉर 4 consecutive क्वार्टर्स, करंटली 3 क्वार्टर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक पॉइंट ऐड करो कि जो हमारा इन्फ्लेशन होता है, जो इन्फ्लेशन होता है, इट शुड ऑलवेज बी इन द लिमिट ऑफ 2 to 6%, राइट? दिस इज द लोअर this is the lower tolerance band and this is the upper tolerance band, ठीक है। and ideal should be 4%, right? So जो हमारा करंटली इन्फ्लेशन मेजर होता है वो होता है कॉन्सिक्यूटिव 3 क्वार्टर्स, यानी लगातार अगर हम 3 क्वार्टर तक अपना इन्फ्लेशन टारगेट का जो बैंड है या जो थ्रेशोल्ड बैंड है उसको अगर हम ब्रीच करते हैं, देन वो हमारा एक फेलियर माना जाता है और उसके लिए आरबीआई इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। आरबीआई को आंसर अपना जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट को कि क्यों इन्फ्लेशन के टारगेट से हम लोग फेल हुए हैं। तो इस कमेटी ने बोला कि ये 3 क्वार्टर से चेंज करके 4 consecutive क्वार्टर्स करा दिया जाए। एंड द होल purpose of this should be that there will be a better analysis, better availability of data and better business cycle perspective, right? So why to increase the time span, greater flexibility to monetary policy in order to go through the sharp movement in food prices which are brought by transient factors, राइट? सो जैसा कि हमने देखा था दिसंबर 2019 हो या फिर आपका जनवरी 2020 हो या मार्च 2020 हो, जो हमारा इन्फ्लेशन था वो था मेनली फूड की वजह से। इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, राइट? एंड if we are going through headline inflation target, we also include the inflation in the area of food and fuel. While when we talk about core inflation, while we talk about core inflation, then it is headline inflation inflation minus inflation due to volatile products, volatile like your food and fuel, ठीक है। तो आप लोग ये थोड़ा सा बेसिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया है
कि जो हम 3 क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन का फेलियर या सक्सेस डिफाइन करते हैं, इट शुड चेंज टू 4 consecutive क्वार्टर्स एंड इट इज मेनली बिकॉज कि मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। और दूसरा है फूड प्राइसेस कैन गो विद द एग्रीकल्चर साइकिल। Agriculture cycle, like agriculture cycle is that 3 seasons, that is Rabi, Kharif and Jade, right? So Rabi is basically is which is grown in the winters, जो अक्टूबर में जिसकी बेसिकली जिसको उगाया जाता है और लगभग मार्च के आसपास आके उसका क्या बोलते हैं उसे हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। देन आपका मार्च से लेके लगभग लगभग आपका उसके बाद फिर आपका खारीफ आता है। देन जेड इज इन बिटवीन दिस राबी एंड खारीफ सीजन। जेड इज मेनली नोन फॉर द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जिसको हम हाई यील्डिंग वैल्यू क्रॉप्स भी बोलते हैं। हाई यील्डिंग वैल्यू क्रॉप्स क्या बोलते हैं इनको? हाई यील्डिंग वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ से ना एक डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एकदम से मुझे याद आया। इंडिया में लगभग लगभग आपका 71% एरिया में जो आपका क्रॉप एरिया होता है, ठीक है, उसमें लगभग 71% में आपका वीट, राइस एंड अदर सीरियल्स उगाए जाते हैं। और इनका आउटपुट केवल और केवल लगभग 20 से 25% है टोटल एरिया में, ठीक है। और जबकि हाई यील्डिंग जो वैल्यू क्रॉप्स हैं ये सिर्फ 18% आपका ऑक्यूपाई करते हैं, जो भी आपका ये ग्रोन एरिया होता है, और इनका आउटपुट लगभग 40 से 45% है, ठीक है। इनका जो शेयर है टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट में वो 40 to 45% है। इसलिए हाई यील्डिंग वैल्यू क्रॉप्स हम प्रिफर करते हैं। और ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को आप लोग थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। So now moving on to next portal, this portal is again very important, that is e-दाखिल portal। ये पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री कौन से मंत्रालय में आता है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स टू इंटीग्रेट। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर्स को इंटीग्रेट करा जा रहा है फॉर द कंज्यूमर्स फॉर द ई फिलिंग, ठीक है। ये आपको ई फिलिंग बेसिकली क्या था आपका, ये आप कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू भी अपनी कंज्यूमर्स जो है अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। सो दैट इज अ टाइप ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। कमीशन ये जो आया था आपका नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, इनकी रिकमेंडेशन पे हुआ है। वॉज डेवलप्ड इन मेंटेन बाय एनआईसी, ठीक है, अंडर द METY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये शॉर्ट फॉर्म्स आप लोग याद रखो, एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो, इट इज वैलिड, ठीक है। द पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट and this portal empowers the consumer and their advocates to file consumer complaints online. Like you must be knowing what are CSCs. CSCs are common service centers, common service centers। ये MITY यानी आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत ये आपका बनाए गए हैं। इसका मेन पर्पस है कि जितने भी आपके रूरल एरियाज, इवन इन अर्बन एरियाज में थर्ड पार्टी के थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएं, जहाँ पे लोग आके सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सके, सरकारी जो सेवाएं हैं या जो सरकारी स्कीम है उसमें अपने आप को पंजीकृत कर सकें, ठीक है। तो ये सब इसके थ्रू होता है। इवन इसके लिए इवन आप अब फ्री लीगल सर्विसेज, जो कि आर्टिकल नंबर 39A का पार्ट है, फ्री लीगल सर्विसेज अब इसके थ्रू पहुंचाया जाता है। इसके लिए स्कीम भी है, दैट इज प्रो बोनो स्कीम, ठीक है। प्रो बोनो इज द फ्री लीगल स्कीम। वो वकील जो फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं वो भी अब आप कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू कर सकते हो। सो बेसिकली दीज आर द पॉइंट from where the residents of the country can enroll themselves in the government services. So the plan is to integrate these common services with the consumer protection act so that the customer can file. Customer do not need to go anywhere, they can simply go to common service centers where they can file their online this consumer complaints to the consumer forum, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो दिस इज ई दाखिल पोर्टल।
ठीक है, कभी भी एग्जाम में प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जाए तो आप लोग बता देना। ई दाखिल जो पोर्टल है सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के लिए आता है और इसका पर्पस ये है कि कंज्यूमर फोरम में लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड की जाए ताकि वो बेसिकली अपनी ईज ऑफ वर्किंग को मेंटेन करते हुए अपनी कंप्लेंट रेज कर सकें। ठीक है, then comes your product link subsidy scheme. This scheme is again very important, and the whole purpose of this scheme to increase the manufacturing, to increase the share of Indian products इन ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड में इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को का शेयर बढ़ाना। ठीक है, तो इट इज अगेन एन आउटकम ओरिएंटेड एज वेल एज आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम इन विच इंसेंटिव्स आर पेड ओनली इफ द मैन्युफैक्चरर्स मेक द गुड्स। यानी अगेन इट इज इंक्रीजिंग द मैन्युफैक्चरिंग। इट प्रोवाइड्स कैश इंसेंटिव्स फॉर 5 to 7 years. Under this scheme, all important sectors covered ranging from automobiles, food processing, advanced chemistry, pharma, solar PV, manufacturing, etc. Recently, आपका IT sectors and IT hardware and pharma sector को भी PLI स्कीम के तहत लॉन्च इंट्रोड्यूस कर लिया गया है, उनको भी ये परमिशन मिल गई है। ठीक है, इसमें जो आईटी सेक्टर का जो हार्डवेयर सेक्टर है, इसमें जो टारगेट सेगमेंट्स हैं वो है टैबलेट्स, जो आपके ये होते हैं आईपैड्स वगैरह, लैपटॉप्स, ऑल इन वन पीसी, सर्वर्स। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ बर्थ 3,26,000 करोड़, 3,26,000 करोड़ will be achieved, out of which 75% through the exports. This is very important कि प्रोडक्ट लिंक सब्सिडी स्कीम में जो हमारा पीआई जो आईटी हार्डवेयर सेक्टर लिंक किया गया है उसमें टारगेट रखा गया है कि हम इस स्कीम से लगभग 3,26,000 करोड़ का आउटपुट अचीव करेंगे और उसमें से 75% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, देन पोटेंशियल टू जनरेट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लगभग 1,80,000 जॉब्स इसमें हम क्रिएट कर पाएंगे इन ओवर 4 इयर्स। ठीक है, then domestic value addition for IT hardware for which there is an expectation that it will rise to 20 to 25% भाई, यानी जो इसकी accumulated growth rate होगा वो 2025 तक लगभग 20% से 25% पहुंच जाएगा। This is the whole idea of introducing IT hardware sector in product link subsidy scheme. Then comes a pharma sector. फार्मा सेक्टर में टू रिड्यूस द इंपोर्ट्स एंड बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, फार्मा सेक्टर टारगेट क्या है? टू रिड्यूस द इंपोर्ट्स एंड बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगेन ठीक है, इंपोर्ट्स रिड्यूस करना और अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना। करंटली जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी जो वैल्यू है लगभग $40 बिलियन के आसपास है और इसका जो ग्लोबल मार्केट में शेयर है वो 3.5% है। एंड इट इज मेनली ड्यू टू द जेनेरिक मेडिसिन्स which we supply to least developed countries. High-end patented drugs are still imported, as we know that at least 45% of APIs जो हमारा आता है वो चाइना से आता है। ठीक है, 45%। This is what is APIs. APIs are active pharmaceutical ingredients. Pharmaceutical ingredients. ठीक है, तो द आइडिया आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट लिंक सब्सिडी स्कीम का ये दिस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर नथिंग बट द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन्स। ये वो केमिकल रॉ मटेरियल होता है जिसके आधार पे हम कोई भी दवाई बनाते हैं। लाइक पैरासीटामोल का कोई रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, रेमडेसिविर का कोई रॉ मटेरियल होगा, डोलो का कोई आपका जैसे क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल होगा। तो जो ये केमिकली रॉ मटेरियल होते हैं जिनके आधार पे दवाइयां बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एपीआई ये आईटी सेक्टर वाला एपीआई नहीं है जैसे एंड्रॉइड वाले लिंकेज वगैरह होते हैं, नहीं वो नहीं है, ये केमिकल वाला एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सो द होल स्कीम इज आउटकम ओरिएंटेड एंड आउटपुट ओरिएंटेड एंड द पर्पस इज to increase the manufacturing of Indian goods and to increase their share in the global trade. ठीक है, इसमें उनको कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और ये इसमें सारे सेक्टर्स वो कवर होते हैं जिनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल होता है, जिसमें हमारी इंडियन मार्केट थोड़ा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का जो प्राइस है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव है नेचर में।
ठीक है, वो सारे सेक्टर्स इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं, राइट। देन नेक्स्ट कम्स द नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिलके कर रहे हैं, ठीक है। इसका पर्पस है टू क्रिएट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल द सिटीज इन द कंट्री, कवरिंग ऑल, दिस वर्ड इज ऑल, जितनी भी सिटीज है। अभी कोई सिलेक्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ सिलेक्टिव सिटी में, सभी सिटीज में इसको लागू किया जाएगा, सभी सिटीज में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। ये प्रीलिम्स के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन है, अगर ऑल आता है देन इट इज राइट। Mission will institutionalize the citizen-centric and ecosystem-driven approach for urban governance and service delivery in cities by the year 2022. ठीक है, देन ये आपका it will also be providing these services in all the cities and towns by 2024, यानी इसका जो सभी cities और towns को कवर करने का टारगेट है वो है 2024, और इसके जो अप्रोच है, जो अर्बन गवर्नेंस में इसका इंट्रोडक्शन है, वो 2022 तक शुरू करना है, ठीक है। देन आपका रिलेटेड इसके साथ ही कि मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, नेक्स्ट इज, और ये भी आपको न्यूज में काफी सुनने को मिलेगा, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज, ठीक है। ये बेसिकली स्मार्ट सिटीज मिशन के द्वारा क्रिएट किया गया है विद द हेल्प ऑफ IISc बेंगलोर, ठीक है। इसका पर्पस है फैसिलिटिंग अ सिक्योर एंड ऑथेंटिकेटेड एक्सचेंज ऑफ डेटा अक्रॉस सेवरल डेटा प्लेटफॉर्म्स, मतलब स्टेक होल्डर्स के बीच में सिक्योर और ऑथेंटिकेट तरीके से डेटा का एक्सचेंज इंश्योर करने के लिए इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज को क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये फुल कंट्रोल इसमें, दिस इज द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये IODX है, इसमें ऑनर्स का अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा, ठीक है। दे कैन मेक श्योर कि जो इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, ठीक है। इसमें आपका एक रेडियो बॉक्स आता है जिसमें आप लोग अपना परमिशन एग्री, डू नॉट एग्री ऐसे करके देते हो, तो उसी के आधार पे देयर विल बी द फुल कंट्रोल ऑफ द डेटा विद द ऑनर्स, ठीक है। हालांकि हम लोग वो सब पढ़ते नहीं है कंडीशंस, बट अगेन वो सब पढ़नी चाहिए आप लोगों को, सबको पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर कोई क्रिटिकल डेटा वाली एप्लीकेशन आप लोग यूज करने वाले हो, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर हो गया ना। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का टारगेट 2024 तक सभी टाउन और सिटीज में डिजिटल इकोसिस्टम, गवर्नेंस इकोसिस्टम डेवलप करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ से एक और चीज बताओ, तमिलनाडु, अच्छा सॉरी, अब मैं क्वेश्चन कुछ और पूछा था, मैंने आंसर ही बता दिया आप लोगों को। द क्वेश्चन इज विच स्टेट रिसेंटली डेवलप्ड the idea to introduce blockchain टेक्नोलॉजी जो हमने पार्ट 1 में बात की थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ठीक है। तो हालांकि मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है, तमिलनाडु, तो याद रखना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये मैं अभी जब पार्ट 3 आएगा उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अभी। बेसिकली उसमें क्या होता है, मैं आपको होल एक आइडिया दे देता हूँ, चलो पार्ट 3 का भी वेट नहीं करते, मैं अभी बता देता हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या पर्पस है तमिलनाडु गवर्नमेंट का, कि जो भी, जैसे मैं 18 साल का हुआ, ठीक है, या आप 18 ईयर्स के हुए, तो जैसे 18 ईयर्स के होंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जनरेट होना चाहिए, ठीक है, आपका वोटर कार्ड जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जिन डॉक्यूमेंट्स पे जो भी कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल होते ही ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट आपके पब्लिक के जनरेट हो जाए और डायरेक्टली जाके आपका डिजी लॉकर में सेव हो जाए। This is the whole purpose of introducing blockchain technology, that the citizen should not need to travel to various government offices for developing their various documents which are very important to avail various government schemes. Once you are eligible under the conditions mentioned in the documents, your document will be automatically uploaded, your document will be automatically generated, and it will be uploaded in the DigiLocker and you can download it from there. Okay, but there are some restrictions, there are some challenges in that, like if we are then driving license, there should be a driving test, then e-signature is the another challenge,
So all these challenges first are being analyzed, they are being discussed with developed IT partners like TCS, Infosys, and accordingly they are being planned to be introduced under the blockchain technology in the governance. Okay, so this whole idea is very important for the governance part of your पार्ट टू जीएस पेपर टू जीएस पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज इन जीएस पेपर थ्री उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ मेरे को एक और चीज बताओ, उड़ीसा की 5T अप्रोच क्या है, गवर्नेंस की 5T अप्रोच क्या है, वो 5T कौन कौन से हैं। ठीक है, आप लोग मेरे को ये बताओगे उड़ीसा के 5T अप्रोच क्या क्या है। गूगल करो इसको, आपको 5T मिल जाएंगे। एंड मेक श्योर कि ये ना कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, आप इसको गवर्नेंस में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, गवर्नेंस के टॉपिक में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आप ये रिसेंट एग्जांपल्स दोगे ना तो 100% यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, then comes your go electric campaign। go electric campaign मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा है। ठीक है, इसका काम है कि फॉसिल फ्यूल का जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंस रिड्यूस करना। लगभग जो फॉसिल फ्यूल का जो इंपोर्ट बिल होता है लगभग 8 लाख करोड़ से ज्यादा, 8 लाख करोड़ के आसपास होता है। एंड विच इज मोर देन द टोटल कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इनकम टैक्स, सॉरी नॉट ऑल डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स से भी ज्यादा अमाउंट है। इनकम टैक्स लगभग पिछले साल का जो रहा है वो 7 लाख करोड़ के आसपास रहा है, उससे भी ज्यादा हमारा इंपोर्ट बिल आता है फॉसिल फ्यूल का। मेनली बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग आर 80% रिक्वायरमेंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, मेरे को कमेंट करके बताओ किस कंट्री से हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। टॉप 3 कंट्रीज मुझे आप कम से ज्यादा वो क्या बोलेंगे, सॉरी ज्यादा से कम को क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग, राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताओ मेरे को, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताओ। ठीक है, कि इनमें से की कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिससे हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ठीक है, देन पैन इंडिया लेवल पे हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, boost the confidence of electric vehicle manufacturers, raise awareness regarding e-mobility and electric cooking across the India। देखो सबसे बड़ी जो चैलेंज आ रहे हैं ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो है उनकी कॉस्ट। ठीक है, तो एक होंडे की ऑरा करके गाड़ी आई है। ठीक है, तो देखने में बड़ी अच्छी है, तो मैं उसका जरा लगभग ऐसी ऐसी प्राइस एक्सप्लोर कर रहा था, तो ये लगभग 11 से 13 लाख की गाड़ी है। ठीक है, लगभग 11 से 13 लाख की गाड़ी है। इससे अच्छा तो मैं क्रेटा ले लूंगा, इससे अच्छा तो मैं आपका कौन सी आती है वेन्यू ले लूंगा। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज वेरी हाई इन इंडिया। ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट ओनली अ ग्रीन नंबर प्लेट, only a green number plate, and why the cost is very high, because the raw material which are utilized for developing the electric batteries is being 100% imported from items from other countries, like for example lithium। ठीक है, लिथियम हम पूरा का पूरा बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा लिथियम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी कॉस्टली इन इंडिया। ठीक है, तो दिस गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। Then comes your Swami Fund. Like what is the full form is special window for completion of construction of affordable and mid-income housing projects. Special window for completion of construction of affordable and mid housing projects is basically ये फंड स्पेशली क्रिएट करा गया है 250 बिलियन रुपए का। ठीक है, जो भी आपके ऑन होल्ड, मतलब जो प्रोजेक्ट्स आपके रेरा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिनकी कंस्ट्रक्शन रुक गई है बिकॉज ऑफ एनी इशू, लाइक डेवलपर का एनपीए बहुत बढ़ गया है या डेवलपर के पास पैसा नहीं है। ठीक है, मेनी रीजंस कैन बी देयर, तो उन सभी प्रोजेक्ट्स को दोबारा से चालू करके कंप्लीट कराने का जिम्मा सरकार ने लिया है। ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल फंड क्रिएट करा गया है जिसको हमने स्वामी फंड बोला है। दिस फंड इज क्रिएटेड एज कैटेगरी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड दैट विच इज रजिस्टर्ड विद द सेबी। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें 50% शेयर रहेगा इस फंड में।
ठीक है। इसके अलावा LIC और स्टेट बैंक का लगभग 10% शेयर है। बाकी जो शेयर है वो आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में डिवाइडेड है। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को ये? ठीक है। स्पेशल विंडो, सो द होल पर्पस इज बेसिकली जो भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी वाले और जो रेरा रजिस्टर्ड हैं उन सभी को फिर से चालू करने के लिए आपका ये स्पेशल डेडिकेटेड फंड बनाया गया है। इससे आपके NPAs रिड्यूस होंगे, क्योंकि जो भी डेवलपर ने लोन लिया है वो लोन तो वापस कर नहीं पाएगा क्योंकि उसका प्रोजेक्ट तो रुका हुआ है। तो दोबारा से हम प्रोजेक्ट चला के ये NPAs को हम रिड्यूस कर देंगे इसमें। ठीक है। देन कम्स योर सक्षम पोर्टल। ठीक है, सक्षम पोर्टल ये आपका टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के द्वारा डेवलप किया गया है। ये क्या है? ये काउंसिल लगभग 1988 में सेटअप करी गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत ये काम करती है। इसका होल पर्पस होता है टेक्नोलॉजिकली इनोवेशंस का एक्सप्लोर करके हमारी सोशल सेक्टर में इनकॉर्पोरेट करना। ठीक है। इस पोर्टल के थ्रू आपका जितने भी वर्कर्स हैं उनकी स्किल्स को मैप किया जाएगा, उनका एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा और उनकी इन स्किल्स को MSMEs की रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच किया जाएगा। मतलब बेसिकली इट्स अ जॉब फाउंडिंग पोर्टल जॉब फाउंडिंग पोर्टल। ठीक है। तो द इनिशिएटिव विल फैसिलिटेट द प्लेसमेंट ऑफ 10 lakh blue collar jobs across India, and the portal will directly connect the workers with MSMEs while eliminating the middleman or the labor contractors. ठीक है। So the whole purpose is to link workers with MSMEs के साथ इनका लिंकेज बनाना, ताकि जो बीच में मिडल मैन है उनको एलिमिनेट किया जा सके, इसका होल पर्पस ये रहेगा आपका। ठीक है। तो अगेन रिपीटिंग, दिस टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाया गया है? टाइफेक्ट के द्वारा बनाया गया है। दिस टाइफेक्ट 1988 में डेवलप की गई थी एंड ये DST के तहत आती है। इसका होल पर्पस है आपका ये जो जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इन सबको कैसे हम इस्तेमाल करके हमारे सोशल सेक्टर में इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक है। Then comes your seaweed cultivation mission. This seaweed is again very important. Seaweed को हम kelp farming भी बोलते हैं। आप लोग मेरे को बताओ, एनवायरमेंट में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा kelp एंड corals में क्या डिफरेंस है? मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे, कैल्प एंड कोरल्स में क्या डिफरेंस है? आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, और नहीं पता तो 100% इसको देख लेना। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। कैल्प और कोरल्स में डिफरेंस होता है, ये आप एनवायरमेंट के लेक्चर्स में पढ़ोगे। ठीक है। इसको कैल्प फार्मिंग भी बोलते हैं। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग द सीवीड एज पर एन एस्टिमेट इफ सीवीड कल्टिवेट इज डन। ये जो एस्टिमेट एक रिपोर्ट के द्वारा किया था, अगर हम सीवीड कल्टीवेशन लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर्स में करते हैं और जिस 10 मिलियन हेक्टेयर या फिर 5% ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया में करते हैं, इट वुड हेल्प इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 50 मिलियन पीपल। ठीक है। तो हमारे भारत में सीवीड की लगभग 850 स्पीसीज पाई जाती है। यहाँ से आप देख लो कहाँ मिलता है। गल्फ ऑफ कच्छ इज इम्पोर्टेंट एरिया, देन दिस अरेबियन सी, देन दिस लक्षद्वीप आइलैंड्स के पास, देन आपका ये गल्फ ऑफ मन्नार के पास काफी वेराइटीज हैं। सबसे ज्यादा वेराइटीज आपकी गल्फ ऑफ मन्नार के पास है। देन आपका ये पारादीप, देन आपका ये बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है। देन अंडमान निकोबार एरिया। तो सबसे ज्यादा जो हमारी सीवीड्स फाइंड होती हैं वो आपका ये यहाँ पे होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ मन्नार के पास होती हैं। ठीक है। ये यहीं पे आपका ड्यूगोंग्स भी मिलती हैं, जो आपका प्रीलिम्स 2017 में भी पूछा गया था। यहीं पे आपके ड्यूगोंग्स जिसको हम सी काउ भी बोलते हैं, बेसिकली जो ड्यूगोंग्स और जो सी काउस वगैरह ये होती है ना, ये दे बेसिकली फीड ऑन दी सीवीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर herbal medicines. These are also used for herbal medicines. They have a very medicinal qualities in them. ठीक है। मेडिसिनल क्वालिटीज होती है इनके अंदर। ठीक है। देन कम्स योर ट्रांसफैट्स हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। FSSAI ने आपका जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं उनके ऊपर कैपिंग लगाई है। बेसिकली ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं?
जब हम वेजिटेबल ऑयल्स जो हमारे होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ जब हम उसको ट्रीट करते हैं देन आपके ट्रांस फैट बनते हैं। इस ट्रांस फैट से क्या होता है, प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है, टेस्ट एनहेंस हो जाता है, टेस्ट एनहेंस हो जाता है, देन आपकी जो स्मेल होती है वो एनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट हैं ट्रांस फैट्स के, बट इसका एक ही हार्मफुल इफेक्ट है, जो सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है कि इट कॉजेज ब्लॉकेज इन द आर्टरीज, ब्लॉकेज इन आर्टरीज which can lead to your cardiac issues, जो आपको कार्डियक इश्यूज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इस न्यू रेगुलेशंस के अंदर फूड प्रोडक्ट्स विच कंप्राइजेस ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड फैट्स एज एन इंग्रेडिएंट, उन सब में टोटल अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट शुड नॉट एक्सीड 2% ऑफ द टोटल ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। मतलब वो सभी फूड प्रोडक्ट्स जिनके अंदर एडिबल ऑयल्स और फैट्स मौजूद रहते हैं, उन सभी में इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट की मात्रा 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो रेगुलेशन है 1 जनवरी 2022 से लागू होगा, ठीक है। इसके अलावा एफएसएसआई ने टीएफएस इन ऑयल्स एंड फैट्स को भी रिड्यूस कर दिया है टू 3%, यहाँ लिमिट कर दी है, ठीक है। देन इट हैज आल्सो केप्ट इट टू 2% बाय 2022 फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ऑफ 5%, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना, करंटली 5% अलाउड है, बट इसको रिड्यूस करके अब 2% कर दिया गया है, और ये आपको जनवरी 1 2022 से लागू करना है, जनवरी 1 2022 से 100% लागू करना है। समझ में आ गया। जब हम वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं तब आपका ट्रांस फैट्स डेवलप होता है, ठीक है। इस ट्रांस फैट से आपकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है, टेस्ट इंक्रीज होता है, टेस्ट एनहेंस होता है, स्मेल एनहेंस होती है, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, आप जो पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे वहां पे आप ट्रांस फैट्स देख सकते हो, ठीक है। ट्रांस फैट वहां पे क्वांटिटी लिखी होती है, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। देन एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनहांस्ड द बोरोइंग लिमिट ऑफ द स्टेट्स बाय 2%, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक ओवरऑल पर्पस बता रहा हूँ कि अब जब कोविड-19 का फर्स्ट वेव आया था मई 2020 में, तब गवर्नमेंट ने सभी स्टेट को बोला था कि यदि आप फोर सिटीजन सेंट्रिक एरियाज में अगर आप रिफॉर्म्स लेके आते हो तो हम आपके जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। दैट इज 0.25% ऑफ जीडीपी आपका इंक्रीज कर देंगे, एंड आपका 2% ऑफ द जीएसडीपी वो भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो आपका पहले तो 2% इंक्रीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनहांस्ड द बोरोइंग लिमिट बाय 2%, ये 2% इंक्रीज कर दिया कि अब आप 2% ऑफ योर जीएसडीपी मार्केट से उठा सकते हो। इसके अलावा आपको 0.25% ऑफ जीएसडीपी और इंक्रीज करने को मिलेगा यदि आप इन 4 सिटीजन सेंट्रिक एरियाज में रिफॉर्म्स लाते हो, ठीक है। क्या क्या है रिफॉर्म्स? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म लेके आना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स कौन डिसाइड करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करता है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या है आपके? creating a transparent and hassle-free provision of power subsidies to the farmers, prevent the leakages, improve the health of power distribution companies by lowering their liquidity stress in a sustainable manner, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कौन सी स्कीम थी, एक स्कीम भी आई थी आपकी, वो स्कीम मेरे को याद नहीं आ रही है, वो बेसिकली पावर सेक्टर के लिए ही थी कि जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, हम जिनको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं, ये उदय उजाला करके कुछ थी, आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट स्कीम, देख लेना आप लोग। ये बेसिकली क्या था, उसमें डिस्कॉम्स का जितना भी आपका डेप्थ था वो गवर्नमेंट ओवरटेक कर लेगी, गवर्नमेंट ओवरटेक कर लेगी, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स, स्टेट गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डिस्कॉम्स की फाइनल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना, उनका जो लिक्विडिटी स्ट्रेस है उसको सस्टेनेबल बनाना, ठीक है। लीकेजेस प्रिवेंट करना पावर सेक्टर में, देन ट्रांसपेरेंट एंड हैसल फ्री प्रोविजन ऑफ पावर सब्सिडी टू द फार्मर्स, ठीक है। ये 3 रिफॉर्म्स थे। यदि आप ये रिफॉर्म्स, अगर स्टेट से रिफॉर्म्स लागू करती हैं तो उनको 2% तो मिल ही रहा है सबको, उसके अलावा उन
स्टेट्स को जो इन 4 सिटीजन सेंट्रिक एरियाज में रिफॉर्म्स लाती हैं उनकी उनकी बोरोइंग कैपेसिटी को 0.25% एडिशनल बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, देन कम्स योर अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स। इसमें क्या क्या है, फ्लोर रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी इन अर्बन लोकल बॉडीज, उनको सर्कल रेट्स के साथ लेके आना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्बन लोकल बॉडीज का ये होता है कि जो टैक्स रेट्स होते हैं ना वो बहुत ही कम होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं और वो बेसिकली इंक्रीज नहीं होते हैं, इंक्रीज नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग फिर टैक्स देना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला फ्लोर रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इन अर्बन लोकल बॉडीज विच आर इन कॉन्सोनेंस ऑफ द प्रिवेलिंग सर्कल रेट्स, मतलब फ्लोर रेट्स जो होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के, दे शुड बी प्रोपोर्शनल टू द सर्कल रेट। कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे आपको फ्लोर रेट सुनने को मिलेगा, ठीक है, और आपको सर्कल रेट सुनने को मिलेगा। ठीक है, ये फ्लोर रेट बेसिकली होता है रेट पर स्क्वायर फीट, दिस इज पर स्क्वायर फीट। ठीक है, दिस इज अगेन ऑल्सो पर स्क्वायर फीट ओनली। इसी के आधार पे इसका ही कुछ परसेंट आप कैश में पेमेंट कर सकते हो बिल्डर को। ठीक है, तो पहला कंडीशन रखा गया फ्लोर रेट शुड बी प्रोपोर्शनल टू सर्कल रेट। ठीक है, देन फ्लोर रेट्स ऑफ यूजर चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज विच रिफ्लेक्ट करंट कॉस्ट ऑफ पोस्ट इन्फ्लेशन, मतलब जो भी आपकी कॉस्टिंग है वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज, ये आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद ही डिसाइड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 साल पहले जो वाटर टैक्स था या 10 साल पहले जो आप टैक्स ले रहे थे वाटर के लिए, ड्रेनेज के लिए, सीवर के लिए, वो आज भी वही है, नहीं, इन्फ्लेशन के साथ उसको एडजस्ट करो और उस हिसाब से बढ़ाओ उसको। ठीक है, इस तरीके से ये तीसरा रिफॉर्म था। ठीक, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दीज रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स याद रखना जरूरी नहीं है, बस इसमें फैक्ट्स थोड़े से याद रखना कि कौन ये रिफॉर्म्स डिसाइड कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। ठीक है, क्या क्या इसमें प्रोविजन है, कैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगेन दिस होल एक्सरसाइज इज इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, वेयर द स्टेट्स competes to bring the reform in these in citizen centric areas in order to increase their borrowing capacity by 0.25% of their GSDP, right? ठीक है, क्लियर है। तो कभी भी जैसे इस बार मेन से पूछा था कि एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स कैन बी कोटेड इन योर मेंस आंसर्स। ठीक है, देन कम्स योर मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जिसे हम मित्रा स्कीम भी बोलते हैं। द स्कीम का पर्पस है कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आफ्टर एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन कंट्री, जिसमें लगभग 85% जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके इनफॉर्मल सेक्टर में हैं और सबसे ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयमेंट आपका टेक्सटाइल सेक्टर में है, याद रखना। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इन सब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके। ठीक है, प्लग एंड प्ले मैंने आप लोगों को जब हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टॉपिक डिस्कस किया था वहां पे मैंने आपको प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज समझाया था, जिसमें सब कुछ बना बनाया मिलेगा, कंपनी को सिर्फ जाना है वहां जाके आपका प्रोडक्शन स्टार्ट करना है और बदले में रेंट देना है। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट तैयार करेगी। ठीक है, दिस इन टर्न विल क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन द एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। इट इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड एपरल। ये फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने साथ के साथ यहाँ पे साइड में कुछ फैक्ट्स बना के लिख दिए हैं। इट हैज अ शेयर ऑफ 5% इन द ग्लोबल ट्रेड। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 3.5% है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड में वो लगभग 5% के आसपास है। ठीक है, कभी भी दोनों इंडस्ट्री को कंपेयर करके भी ये लोग प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को इन करंट अफेयर्स में कवर कराऊंगा। इसमें हम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? ये आप लोग नोट्स बनाते रहना साथ के साथ, मैं पीपी ये आपको जितने भी नोट्स हैं पीडीएफ इनकी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स योर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पीआईडीएफ, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स।
जो मेन एम है इन फंड्स का इज टू डिप्लॉय मोर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस टायर 3 टू टायर 6 सेंटर्स। ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 आप लोगों को पता है क्या? टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5, टायर 6, आप लोगों को पता है ये सारी चीजें किस बेसिस पे डिसाइड की जाती हैं? कौन सी सिटी टायर 1 में आएगी, कौन सी सिटी टायर 2 में आएगी, कौन सी सिटी टायर 4 में आएगी, और कौन डिसाइड करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है? नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। ये जो टायर 1 होता है, सबसे पहले तो ये पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन के आधार पे टायर 1 किया जाता है, और जो पूरा बेसिस होता है वो पॉपुलेशन संख्या, मतलब जनसंख्या के आधार पे टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5, टायर 6 डिसाइड किया जाता है, ठीक है? तो जो टायर 1 है उसमें जनसंख्या आपकी 1 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। टायर 2 में 50,000 से लेके 99,999 तक होनी चाहिए। टायर 3 में आपकी जो जनसंख्या है वो 20,000 से लेके 49,999 तक होनी चाहिए। और टायर 4 में जो जनसंख्या है वो 10,000 से लेके 19,999 तक होनी चाहिए। टायर 5 में 5,000 से 9,999 तक, और टायर 6 में 5,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है? तो द थिंग इज कि द मेन एम ऑफ द फंड इज टू डिप्लॉय द मोर डिजिटल पेमेंट इन टायर 3 और टायर 6 सिटीज में, ज्यादा डिजिटल पेमेंट, मतलब डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ठीक है? तो द फंड, जो ये फंड क्रिएट किया गया है, इसमें लगभग 345 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और जिसमें से 250 करोड़ विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय आरबीआई एंड 95 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय द कार्ड नेटवर्क्स ऑपरेटिंग इन द इंडिया, लाइक मास्टर कार्ड, वीजा, ठीक है, रुपए। बाकी ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? ये जो फंड है 2021 2 साल के लिए ऑपरेट रहेगा, 2021 और 2022 के लिए, ठीक है? इसी के साथ साथ एक और फंड सुनने को मिलेगा आपको न्यूज में, एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड। ये भी आपका आरबीआई के द्वारा प्रपोज किया गया है, लागू नहीं किया गया है, प्रपोज किया गया है। इसका पर्पस है स्वाइप मशीन्स के लिए या कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज स्वाइप मशीन्स का डेवलप करना फ्रॉम टायर 3 टू टायर 6 सिटीज, ठीक है? सो दीज बोथ आर रिलेटेड। इसमें एंटायर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात हुई है, और इसमें कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात हुई है। डिफरेंस दोनों को याद रखना। दिस इज ओनली बीइंग प्रपोज्ड, ये अभी लागू नहीं हुआ है और ये लागू हो चुका है, ठीक है? इसके कुछ अदर डिटेल्स आप लोग याद रखना। इसका पूरे फंड का जो बजट है वो 345 करोड़ रखा गया है, जिसमें से 250 करोड़ विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय आरबीआई, 95 करोड़ ऑफ द रुपीज बाय कार्ड नेटवर्क्स व्हिच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है? क्लियर है आप लोगों को? देन इसके लिए कुछ फास्ट फैक्ट्स आपको, स्टेबल ये स्टैटिक फैक्ट्स है। जो हमारा सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो प्रपोज किया गया है, जो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है, वो ओमकलेश्वर डैम नर्मदा रिवर पे बनाया जाएगा। इसकी प्रपोज कैपेसिटी रहेगी 600 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। देन आपका सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। कभी आप लोग समझो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नहीं, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत ये आती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारा रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। बेसिकली इसका पर्पस नाम से पता चल रहा है, हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। हमारे जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको उनका शेयर ग्लोबल ट्रेड में बढ़ाना है। तो अगेन द टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, इस स्कीम के तहत एक मैकेनिज्म क्रिएट किया जाएगा जिससे जितने भी लिवाइस, टैक्सेस और ड्यूटीज एट सेंट्रल एंड स्टेट एंड लोकल लेवल्स लग रहा है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ऑन देयर रॉ मटेरियल्स, जो वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सब हम रीइंबर्स करेंगे, उन लोगों को रीइंबर्स करेंगे ताकि कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके। क्योंकि जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो है आपका पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया, ठीक है? लाइक इफ यू से दैट लगभग 70% ऑफ फ्राइट, लगभग 70% ऑफ माल, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या फिर बन रहा है,
उस वो रोड से ट्रांसफर किया जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट के अपने चैलेंजेस है, जाम लगना, डिले होना एंड ऑल दीज थिंग्स। देन रेलवे हमारा अब इतना एफिशिएंट नहीं है अभी। अब जाके जब डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बना रहे हैं तो इस पूरे का पर्पस यही है, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स हो गया या फिर एक्सप्रेस वेज हो गए, जो हमारा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वगैरह, ये सब जो है ना, इसका पर्पस यही है कि हम जो पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको डेवलप कर सकें और उससे अल्टीमेटली कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सके ताकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़े। ठीक है, एंड दिस स्कीम इज एज पर द अकॉर्डेंस विद डब्ल्यूटीओ रूल्स, मतलब डब्ल्यूटीओ के रूल्स भी वायलेट नहीं हो रहे हैं। रिड्यूस द पोस्ट प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर द एक्सपोर्टर्स। ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स इसका मेन मुद्दा है। ठीक है, देन कम्स योर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ये कौन निकालता है? आरबीआई निकालता है। ठीक है, आपका आरबीआई निकालता है। देन इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसके 5 पैरामीटर्स हैं: पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। इसके पास इसके सब पैरामीटर्स हैं। पेमेंट इनेबलर्स के इंटरनेट, मोबाइल, बैंक अकाउंट, मर्चेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, और जो इसको वेटेज दिया गया है लगभग 25% का दिया गया है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड में क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डेबिट कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल दैट इज पीओएस जिसे हम बोलते हैं, जो आपकी स्वाइपिंग में स्वाइप मशीन्स वगैरह होती हैं। क्यूआर कोड आप लोग को सबको पता होगा, जो आप पेटीएम वगैरह यूज करते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पे कर सकते हो। ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। Then payment infrastructure supply side factors, this is same as the payment infrastructure demand side factors, but it is from the supply side. Then comes your payment performance. Payment performance is like paper clearing, cash withdrawal rules, e-volume, volume of digital payments, unique users, currency in circulation, ये सब सबसे ज्यादा वेटेज है इसका पेमेंट परफॉर्मेंस को। ठीक है, देन कस्टमर सेंट्रिसिटी, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर एजुकेशन, अवेयरनेस, कंप्लेंट्स, फ्रॉड, सिस्टम्स, ये सब चीजें। ठीक है, तो अगेन द वेटेज इज फॉर पेमेंट इनेबलर्स इज 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिमांड साइड फैक्टर्स इज 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम सप्लाई साइड फैक्टर्स इज 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस इज 45% एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी इज 5%। ठीक है, देन कम्स योर लाइट हाउस प्रोजेक्ट। लाइट हाउस प्रोजेक्ट से कभी भी कंफ्यूज मत होना। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है जो बीच वगैरह पे लाइट हाउस बनाए जाते हैं, नहीं। लाइट हाउस है मतलब हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम अपना हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, under lighthouse project, sustainable housing is the main important considering the local climate and ecology. Under the project, cheap and strong house are built using special techniques. Beam columns जो होते हैं जो and panels of the houses are to be prepared from factories and brought to the place of construction. मतलब डायरेक्टली फैक्ट्रीज से आएंगे, बने बनाए आएंगे, सिर्फ यहाँ के इंस्टॉल करना है। कंप्लीटली अर्थक्वेक रेजिडेंट हाउसेज हैं एंड 14 स्टोरी टावर्स विल बी बिल्ड। लगभग 10,000 के आसपास इसमें घर बनेंगे। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये यूनियन अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली हम स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके चीप और स्ट्रॉन्ग हाउसेस का निर्माण करेंगे, जिसमें हम लोकल क्लाइमेट और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए सस्टेनेबल हाउसिंग को बनाएंगे। ठीक है, देन कम्स योर इंडस्ट्रियल एरियाज एंड लॉजिस्टिक्स हब। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कृष्णापट्टनम, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम वेरियस इंडस्ट्रियल एरियाज और लॉजिस्टिक्स हब डेवलप करेंगे। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट फॉर कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया इन आंध्र प्रदेश, तुमाकुरु इंडस्ट्रियल एरिया इन कर्नाटका। Then multi-modal logistic hub and multi-modal transport hub will be developed at the Greater Noida. Again, this is to reduce the, ऐसा कभी भी मेंस का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग ये सारे स्कीम्स जरूर मेंशन करके आना, इसलिए मैं स्कीम्स भी करंट अफेयर्स में कवर कर रहा हूँ। पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर एक्सपोर्टर्स, ऑल्सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है ये। ठीक है, ग्रोथ सेंटर्स को एक्सपैंड करता है, ग्रोथ सेंटर्स को एक्सपैंड करता है।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए कि जो भी हम स्कीम की बात कर रहे हैं उससे फायदा क्या हो रहा है, उसको क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी स्कीम लाने के पीछे ना हमेशा कोई ना कोई पर्पस होता है, वो स्कीम कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जब हम पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर एक्सपोर्टर्स रिड्यूस कर देंगे, इससे क्या होगा, हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में फ्लो करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लिंकेज हैं, ये सारा का सारा इकोनॉमी एक प्रोडक्ट के साथ, अब एक प्रोसेस के साथ पूरी की पूरी इकोनॉमी को रिलेट कर सकते हो। इस तरीके से कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो इस तरीके से रिलेट करते हुए चलना, करंट अफेयर भी याद रहेगी आपको हमेशा और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा होता रहेगा। ठीक है, देन आपका जैसे अब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आने के अपने कुछ फायदे हैं, जो हमने फायदे सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे कि हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग रहती है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी चीजें हैं हमारी। ठीक है, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहता है। ठीक, तो ये सब आपको ऐसे पढ़ना है। देन कम्स योर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, दिस सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पब्लिक अथॉरिटी में, public authority is basically a contract with public sector authority where it pays for better social outcomes। ठीक है, इट इज अगेन आउटकम बेस्ड सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इसका पर्पस पूरा का पूरा होता है जो सोशल आउटकम्स है उनको इम्प्रूव करना। ठीक है, ये कभी भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड नहीं करते हैं। आउटकम ऑफ सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ द सोशल आउटकम, मतलब जिस भी पर्पस के लिए वो बॉन्ड लाया गया है, ठीक है, उसका क्या आउटकम आ रहा है उसके बेसिस पे उसका प्रॉफिट डिसाइड होगा। ठीक है, ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और मार्केट रिस्क से इफेक्ट नहीं होता, बट यस इट इज अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन रिस्क। किस बेसिस पे हम किसी भी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड की सक्सेस को डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के दिमाग में भाई हम सोशल सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए एक ईएसडी क्राइटेरिया होता है, दैट इज एनवायरमेंट फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड गवर्नेंस फैक्टर्स। एनवायरमेंट फैक्टर्स में आता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिसोर्स डिप्लीशन, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज। सोशल फैक्टर्स में आता है आपका वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ, सेफ्टी, एम्प्लॉय रिलेशंस एंड कन्फ्लिक्ट। गवर्नेंस फैक्टर्स में आता है टैक्स स्ट्रेटेजी, डोनेशंस, पॉलिटिकल लॉबिंग, एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन, ब्राइबरी, करप्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स पे जब हम डेफिनेशन, इन सब फैक्टर्स को जब हम मेजर करते हैं तब हमें पता चलता है व्हाट इज द सक्सेस पैरामीटर ऑफ दिस सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, एंड बेस्ड ऑन दैट सक्सेस वैल्यू और द बेस्ड ऑन दैट सक्सेस पैरामीटर और बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ these parameters the profit or the fixed rate or the rate of return will be decided on this। ठीक है, करंटली अभी एक पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पीपीएमसी महाराष्ट्र में अभी किसी यूएनडीपी के साथ आई गेस ये बॉन्ड साइन करा है। ठीक है, देन इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी अभी सेटअप करने जा रहे हैं कि कहाँ पे सेटअप होगी, गुजरात में होगी। इसके लिए जो भी ओर आएगा, जो भी रॉ मटेरियल आएगा वो ऑस्ट्रेलिया से आएगा। लिथियम इंपॉर्टेंट क्यों है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। गोल ऑफ इंक्रीजिंग, हमारा जो गोल है, टारगेट है, वो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के नंबर लगभग टोटल व्हीकल्स का 30% पहुंचाएं 2030 तक। ये जो हमारी फेम स्कीम है उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिया इज इंपोर्टिंग ऑल द, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि सारा का सारा जो लिथियम होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं और दीज लिथियम आयन बैटरीज आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। इंडिया इज करेंटली डिपेंडेंट ऑन चाइना, जापान एंड ताइवान फॉर इलेक्ट्रिकल बैटरीज, वहां से हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल बैटरीज इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं, आप लोग नोट कर लेना इनको। चाइना लगभग 51% ऑफ ग्लोबल लिथियम पे कंट्रोल करता है, मतलब सारा लगभग ग्लोबल लिथियम जो है वो 51% आपका चाइना के साथ चाइना निकालता है। 62% ऑफ द कोबाल्ट, कोबाल्ट इज अनदर मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, then this South American lithium belt is very rich in lithium। ठीक है, ये लगभग 500 माइल बाय 2000 माइल नॉर्थ साउथ स्ट्रिप एंड इज सेंटर्ड ऑन द जंक्शन ऑफ बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चाइल। दीज आर लाइंग इन द साउथ अमेरिका। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सी माउंटेन रेंज आती है यहाँ पे, कौन सी माउंटेन रेंज आती है इन तीनों कंट्री को जोड़ते हुए।
ठीक है, दिस द बेल्ट होल्ड्स मोर देन 75% ऑफ द वर्ल्ड लिथियम रिजर्व्स, बट स्टिल यहाँ से अभी भी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया है। जब हम लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे एंड देन योर पोर्टुगल। ठीक है, ये फैक्ट्स आप लोग बिल्कुल याद रखना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर आर क्लस्टर। आर क्लस्टर इज बेसिकली इज नोन एज द रिलायंस क्लस्टर एंड इट इज क्लस्टर ऑफ 3 natural gas basins in Krishna Godavari basin। बेसिकली आपका ये साउथ इंडिया है, यहाँ से ये आपका आंध्र, यहाँ से ये आ गया। सो दिस एरिया is very rich in the natural gas, and here we have three natural gas reserves which Reliance is producing with the help of British Petroleums। ठीक है, ब्रिटिश पेट्रोलियम एंड रिलायंस मिलके कर रही है ये। 3 डीप वाटर बेसिन है। केजी कौन कौन से हैं आपके ये? केजी, D6 ब्लॉक, ठीक है, सैटेलाइट क्लस्टर एंड द एमजे गैस फील्ड। इस एरिया में आते हैं कृष्णा गोदावरी, राइट। दिस इज कृष्णा कमिंग फ्रॉम हियर, दिस इज द गोदावरी कमिंग फ्रॉम अपर साइड। ठीक है, ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होके आती है आपकी कृष्णा भी आपकी महाराष्ट्र में से ही आती है, समवेयर कहीं नासिक के पास से ओरिजिनेट होती है। लोग आप लोग ये सब देख लेना जरूर, कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, दिस इज वेरी रिच इन नेचुरल गैस रिजर्व्स एंड द होल प्रोडक्शन इज बीइंग कैरिड आउट बाय द रिलायंस इंडस्ट्री अलॉन्ग विद द ब्रिटिश पेट्रोलियम। इसको बोलते हैं रिलायंस आर क्लस्टर। कभी भी न्यूज में आए तो आर क्लस्टर याद रखना, इज एसोसिएटेड विद द नेचुरल गैस रिजर्व्स। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर क्लस्टर रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हाट? तो आर क्लस्टर इज एसोसिएटेड विद द नेचुरल गैस रिजर्व्स। ठीक है, एंड इज इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। Then comes a regulatory sandbox. This question is very hot in topic and ये पूछा जाएगा। ठीक है, पिछले 2 से 3 साल से जितनी भी टेस्ट सीरीज उठा लो प्रीलिम्स की, सब में क्वेश्चन मिलेगा, बट यूपीएससी ने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड एनी टाइम। ठीक है, ये बेसिकली लाइव टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो हमारी फिनटेक कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कर सकती है लाइव एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, विद नो रिस्क एट ऑल। ठीक है, उनको अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिक में लाइव पहुंचाने की जरूरत नहीं है, उसको सबसे पहले आप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पे टेस्टिंग कर सकते हो। ये आरबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, ये जो है आपका सादा गोपान कमिटी इज एसोसिएटेड विद रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, याद रखना, सादा गोपान। The companies can test their product viability without the need for a larger and more expensive rollout with the help of regulatory sandbox। ठीक है, then comes your Caratar rules। The rules provides a list of minimum information to be possessed by the importer and इसका overall rule ये है कि origin country हमें पता होना चाहिए। ओरिजिन कंट्री, जो भी इंडियन इंपोर्टर जो भी सामान को इंपोर्ट कर रहा है, देन दैट इंपोर्टर नीड टू एंश्योर दैट, उस इंपोर्टर को ये सूचित करना होगा अपने प्रोडक्ट्स पे कि ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कंट्री से आया है। ठीक है, तो जब आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर बिग बास्केट के प्रोडक्ट देखोगे तो वहां पे लिखा होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो ये रूल्स उसी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन जानना इसका बेसिक पर्पस है और इसका व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। इस सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको चाइना और साउथ ईस्ट एशिया का एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का एक ग्रुप है आसियान करके, ठीक है, आसियान, जिसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इंडिया से इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो व्हाट चाइना डू, चाइना के साथ भी आसियान का एफटीए है। ठीक है, बट इंडिया और चाइना में एफटीए नहीं है, तो चाइना क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को पहले आसियान में भेजेगा क्योंकि यहाँ तो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर वो आसियान के थ्रू इंडिया में आते हैं क्योंकि यहाँ भी एफटीए है। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे उसको ड्यूटी और टैक्स पे करना पड़ता, अब वो इस रूट का मिसयूज करके अपना प्रोडक्ट फ्री ऑफ द टैक्स, मतलब बिना किसी ड्यूटी के इंडिया में पहुंचा रहा है।
ठीक है। सो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन कंपलसरी है। अब यदि कोई भी प्रोडक्ट इस रूट से आ रहा है और उस पे लिखा है मेड इन चाइना, तो वो 100% टैक्स लगेगा ही लगेगा, फिर चाहे वो आसियान वाले रूट से आए या चाहे वो डायरेक्ट रूट से आए, ठीक है। स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन डंपिंग ऑफ गुड्स बाय अ थर्ड कंट्री, मतलब डंपिंग ऑफ गुड्स होता है जब कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंट्री के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है एट द प्राइस लोअर देन देयर डोमेस्टिक प्राइस। मतलब अगर ओप्पो का फोन चाइना में 5,000 का है और वो फोन चाइना मार्केट में 5,000 का बेच रहा है, पर वो फोन इंडिया में 3,000 रुपए का भेज रहा है, तो दिस इज नोन एज डंपिंग। जब किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है एट द प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस, उसको बोलते हैं डंपिंग। और इसके लिए हमारे पास होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। इट स्ट्रेंथन द कस्टम्स डिपार्टमेंट टू चेक अटेम्प्टेड मिसयूज ऑफ ड्यूटी कंसेशंस अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। Then comes your HSN code rules. HSN is harmonized system nomenclature. HSN is harmonized system nomenclature. It is again basically to synchronize the global trade. और इसमें क्या होता है ना, अब जैसे प्रोडक्ट है कोई भी, ठीक है, प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट का एक कोड होता है, ठीक है। हर प्रोडक्ट का कोड होता है और उस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट के नाम से नहीं बुलाया जाएगा, उसके कोड से जाना जाएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज। जैसे एक मशीन लैंग्वेज होती है, ऐसी ये इकोनॉमिक लैंग्वेज कॉल करता है, क्योंकि हम अब गुड्स को इंग्लिश लैंग्वेज से ना बुला के इसके कोड नाम से बुलाते हैं, ठीक है। द कोड कंप्राइज ऑफ मोर देन 5,000 कमोडिटी ग्रुप्स। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा है, जैसे अगर HSN ऑफ ओनियन इज 07031010 है, तो इसमें जो ये 07 है ये बेसिकली डिनोट करेगा एडिबल वेजिटेबल है ये एक, ठीक है। 03 है बेसिकली, तो ये हेडिंग इन द चैप्टर सच एज अनियंस, गार्लिक, शैलेट्स, लीक्स, इन सब कैटेगरी में आएगा। और जो बाकी बचे हुए 4 डिजिट हैं ये सब हेडिंग्स वगैरह डिनोट करेंगे। एंड सब हेडिंग कैन बी फ्रेश और चिल्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए कोड होगा, ठीक है। देन ऐसे आपका IT हार्डवेयर्स के लिए गुड प्रोडक्ट के लिए कोड होगा। अब उस कोड से ही आइडेंटिफाई किया जाएगा उस प्रोडक्ट को, ठीक है, उस प्रोडक्ट के नाम से आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको कस्टम टैरिफ के लिए, इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिक्स, ट्रांसपोर्ट टैरिफ्स एंड स्टैटिक्स के लिए, custom control and procedures, controlled goods such as narcotics, chemical weapons, endangered species। yes, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि this HSN code is also promoting the idea of sustainable environment। तो आप लोग वहां से कंफ्यूज मत हो जाना कि HSN code is basically for trade purpose, तो ये sustainable environment कैसे प्रमोट कर रहा है? yes, ये कर रहा है। endangered species का भी एक HSN कोड होगा, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का भी एक कोड होगा, वाइल्ड लाइफ ट्रेड का भी एक कोड होगा। तो इस बेसिस पे हमें पता चल जाएगा जो ये प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट एक सस्टेनेबल एनवायरमेंट को भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है। देन ये 2 फंड हैं, बहुत न्यूज में रहते हैं, NIIF और NIP, ठीक है। इस पे हमने डिस्कशन ऑलरेडी भी किया है, बट मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस साथ के साथ बता देता हूँ। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है जो बिल्कुल न्यूली फॉर्म, बिल्कुल स्टार्टिंग से बनता है या बिल्कुल स्क्रैच से बनता है। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं उनमें इंप्रूवमेंट करना, जैसे कोई फैक्ट्री खंडर कंडीशन में है या बेकार कंडीशन में है, उसको रेनोवेट करके एक अच्छी फैक्ट्री में कन्वर्ट करना। दोज आर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर 3 फंड्स आते हैं, मास्टर फंड आता है, स्ट्रेटेजिक फंड आता है, फंड ऑफ फंड्स आता है। मास्टर फंड जो प्राइमरी ये जो है ये प्राइमरी इन्वेस्ट करते हैं रोड्स में, एयरपोर्ट्स में, पोर्ट्स, पावर एक्सेट्रा। स्ट्रेटेजिक फंड आता है, दे आर एलोकेटेड टू ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इन द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ठीक है। जैसे आपका रेलवेज हो गया, पोर्ट्स, रोड, सेम एरियाज आ जाएंगे यहाँ भी, ठीक है। फंड ऑफ फंड्स आता है, ये बेसिकली जो फंड ऑफ फंड्स है ना, ये आपका स्पेशल कैटेगरी फंड्स हो जाते हैं, ठीक है। इनको स्पेशल मैनेजर्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। दे प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड अलाइड सेक्टर्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है। दिस स्ट्रेटेजिक फंड इज कैटेगरी टू
ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेज बाय सेबी, दिस इज मैनेज बाय सेबी, ठीक है। देन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज बेसिकली फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड या सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका अगेन एक और पर्पज है ईज ऑफ लिविंग प्रमोट करना, clean affordable energy, safe drinking water, more than railway stations, bus terminal, airport, world class educational institutions, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली है आपका पोर्ट्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, रोड्स। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं, यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी ऑल्सो, educational institutes also. So the main objective here is social and economic infrastructure डेवलप करना, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है। और ये एसटीए की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2025 तक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा वो मेनली इन 4 सेक्टर में होगा, रोड्स, एनर्जी, अर्बन एंड रेलवेज, ठीक है। ये 70% जो हमारा खर्चा होगा वो इन 4 सेक्टर में होगा। इस फैक्ट को आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखना। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। देन कम्स योर प्रोजेक्ट किराना। प्रोजेक्ट किराना बेसिकली मास्टर कार्ड और यूएस एड के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी यूपी के वुमेन में प्रमोट करना, ठीक है। अभी ये यूपी में ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, क्वेश्चन इज वाई कि यूपी में लगभग 14 से 15% ऑफ टोटल एमएसएमईज आपके यूपी के अंदर आते हैं। 14 से 15, ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है, ऐड कर लेना आप लोग, भूल गया मैं इसको यहाँ लिखना, तो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। यूपी जो टोटल एमएसएमईज का 14 से 15% एमएसएमईज यूपी में है, और इन एमएसएमईज में यूपी की टोटल 10% फीमेल, जो जितनी भी टोटल फीमेल वर्कर्स हैं उसमें से 10% फीमेल वर्कर्स इन एमएसएमईज में काम करते हैं, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। A 2-year program is to be rolled out in selected cities of कानपुर, लखनऊ एंड वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। बेसिकली आइडिया इज प्रोजेक्ट किराना से कुछ ऐसा मत समझ लेना कुछ फूड वगैरह प्रोवाइड करना, नहीं। इट इज बेसिकली टू इंक्रीज द डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ द वुमेन इन उत्तर प्रदेश की कुछ सेलेक्टेड सिटीज में, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इन सब एरियाज में, ठीक है। देन कम्स योर मिशन कोविड सुरक्षा, ये 900 करोड़ का पैकेज है। इसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। इस फंड में कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। देन कम्स योर सीआरए। सीआरए इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आईआर के चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, बट मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जो सीआरए ये ब्रिक्स का है, ठीक है। इसका पर्पस है कि अगर ब्रिक्स मेंबर कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करता है तो उस केस में सीआरए से उस कंट्री की मदद की जाएगी, ठीक है। इसमें 100 बिलियन का फंड रखा गया है। किस कंट्री ने कितना कंट्रीब्यूट करा ये आपको पता होना चाहिए। चाइना ने 41 बिलियन, ब्राजील 18 बिलियन, रशिया 18 बिलियन, एंड देन आपका दिस इंडिया 18 बिलियन, साउथ अफ्रीका 5 बिलियन। तो इनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से के परसेंटेज के बेसिस पे ही इनको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के दौरान मदद पहुंचाई जाएगी सीआरए से, ठीक है। देन कम्स स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इन्वेस्ट इंडिया ने मिलकर बनाया है। इसका पर्पस यही है कि आयुष सेक्टर को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करना, ठीक है। ये याद रखना, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो, क्योंकि आप नाम देख के नहीं बता पाओगे कि इट इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो जो बनाया गया है इट इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देन कम्स योर रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत है। इट इज बेसिकली कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ आयुष ड्रग्स। दिस विल हेल्प टू प्रमोट आयुष बेस्ड इंडस्ट्रीज। टूरिज्म इंडस्ट्री का मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। 2019 में फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया इंक्रीज बाय 2.2%। ओवरऑल फॉरेन विजिटर्स टू इंडिया इन 2019 वाज 28.9 मिलियन। लगभग आप 30 मिलियन के आसपास लिख सकते हो इस डेटा को, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा 5 सोर्स कंट्रीज हैं, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा, देन यूनाइटेड स्टेट्स से, यूनाइटेड किंगडम से, देन श्रीलंका से, देन कनाडा से, ठीक है। जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू आया है टूरिज्म में 2019 में वो लगभग 29 बिलियन यूएसडी आया है। तो ये डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। टोटल फॉरेन विजिटर्स लगभग 29 मिलियन है।
और टोटल फॉरेन एक्सचेंज आपका 29 बिलियन है। इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे, टोटल फॉरेन टूरिस्ट अराइविंग इन इंडिया में से 58%, लगभग 60-40 का रेशियो रख लो इसमें, लगभग 60% आपके मेल्स हैं और 40% आपके फीमेल्स हैं, ठीक है। देन आपका आता है DSSI, इसे बोलते हैं DSSI के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली एक G20 इनिशिएटिव है, G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज मेंबर्स, बताओ कौन कौन से हैं इसके, ठीक है। देन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इसका पर्पस है कि फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो भी म्यूचुअली डिसाइडेड होगा, डेब्ट सर्विस पेमेंट फ्रॉम द पुअरेस्ट कंट्रीज आर सस्पेंडेड अपॉन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंट्रीज, ठीक है। जैसे अभी इंडिया और म्यांमार के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि म्यांमार इस इन द पुअरेस्ट कंट्री में आती है, ठीक है। तो उसने इंडिया से रिक्वेस्ट करी थी कि हम आपका डेब्ट अभी, क्या हम थोड़े टाइम के लिए आपका डेब्ट बाद में रीपे कर देंगे, या अभी हमसे डेब्ट मत लो, कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई है। तो इस तरीके से ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस इमीडिएट लिक्विडिटी नीड्स। द पुअरेस्ट कंट्रीज आर लो इनकम एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज। मैंने आपको, जब हमने इकोनॉमिक का लेक्चर पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन क्या है। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन क्या है लो इनकम एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज की, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे इसको, ठीक है। देन हाइड्रोजन एनर्जी का मैं कुछ आपको क्विक फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये सब आपको याद करने हैं, समझने का इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड अप करा है मैंने अपने आप को। अब आप सोच रहे होंगे ऑब्वियसली मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है, बिकॉज ये सब आपको मेमोराइज करना है, ये सब आपको रेगुलरली अपने नोट्स में लिखना है, रेगुलरली उन नोट्स को रिवाइज करना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स आप जब ढूंढोगे तो गूगल करने में बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा आपको, मैंने ये आपको एक जगह लिख के दे दिए हैं, ठीक है। 48% of hydrogen produced in India currently are from natural gas. 30% is produced from oil, 10% from coal and 4% from electrolysis of water, that is the technology of fuel cell. ठीक है। करंटली हाइड्रोजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर नॉन एनर्जी एप्लीकेशंस। अभी करंटली जो हाइड्रोजन है वो नॉन एनर्जी एप्लीकेशंस के लिए प्रोड्यूस की जा रही है, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज के लिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के लिए। हाइड्रोजन इज वन ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट्स, देयरफॉर इट राइजेस इन द एटमॉस्फेयर, एंड ये हमें बहुत ही कम प्योर फॉर्म, मतलब मिलता ही नहीं है प्योर फॉर्म, इधर इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इधर इट इज फाउंड इन हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म। हमेशा किसी ना किसी एलिमेंट के साथ ये हमेशा लिंक मिलेगा, कभी भी अपना नोबल फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये कभी भी नोबल फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। इट इज अ जीरो एमिशन फ्यूल व्हेन बर्न्ड विद ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो जीरो एमिशन होता है, क्योंकि सारा का सारा एमिशन आपका लिक्विड फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन कम्स यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी। देखो हमारा 2017 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, येलो बॉक्स सब्सिडी किस चीज के साथ रिलेटेड है। सो इट वाज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर विच इज एसोसिएटेड विद WTO। तो ऐसे करके ये भी पूछा जा सकता है, बहुत टाइम से न्यूज में है कि यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कौन से इंस्टीट्यूट के साथ रिलेटेड है या इसका क्या पर्पज है। तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ एसोसिएटेड है, याद रखना, ठीक है। इसका पर्पस ये है कि यदि वर्ल्ड बैंक से हम कोई लोन लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक एक कंडीशन रख सकता है। क्या कंडीशन रख सकता है? यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कंडीशन रख सकता है। यदि वर्ल्ड बैंक ने यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी की कंडीशन रखी उस कंट्री से, तो इसका मतलब क्या है कि अब उसको प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस पॉलिसीज नहीं लागू करनी है। मतलब जैसे इंडिया में है ना कि हमारा जो गवर्नमेंट एलोकेशन होगा या गवर्नमेंट हम जो भी प्रोक्योरमेंट करेंगे वो MSME से करेंगे, फिर वो कंट्री वो नहीं कर सकती है, उसको सबको इक्वल लेवल पे लेके जाना है। लोकल फर्म शैल नॉट एंजॉय कंसेशन बेनिफिट्स, दे विल हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली जस्ट लाइक अदर यूनिवर्सल और फॉरेन फर्म्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट and also to MSME policy. Railway Board has to make procurements according to the guidelines provided by the World Bank. ठीक है, even the Railway Board has also to follow the guidelines provided by World Bank in terms of the government procurements. सिंपल सा मतलब है कि हम लोकल फर्म्स को अब कंसेशंस नहीं दे सकते हैं या लोकल फर्म्स को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, हमें उनको यूनिवर्सल फर्म के साथ इक्वली ट्रीट करना है। दिस इज द पर्पस ऑफ यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी एंड इट इज एसोसिएटेड विद वर्ल्ड बैंक, ठीक है।
तो अब आपको समझ में आ रहा है ना न्यूज़पेपर से कैसे हमें एक एक वर्ड निकालना है, एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड को खींच के बाहर निकालना है, उसके बारे में पढ़ना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। देन कम्स योर, ये नया प्रोग्राम आया एराइज, ठीक है। ये प्रोग्राम बेसिकली इसरो ऑर्गेनाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। इसका पर्पस सिर्फ इतना है, इंडियन स्टार्टअप्स और एमएसएमईज में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। इसमें 50 लाख तक का फंड टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। देन कमिटी ऑन रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस, ये बेसिकली केवी कमात इसके चेयरमैन है, इसलिए सब केवी कमात कमेटी भी बोला जाता है। इसकी रिकमेंडेशंस थोड़ी सी आप लोगों को याद रखनी है। इट हैज रिकमेंडेड टू कीप द डेप्ट कवरेज रेशियो टू 1 एंड मोर देन 1, ठीक है। It suggests lenders should consider total outstanding liabilities, total debt, current ratio, average debt service coverage ratio, ये सब को कंसीडर करके ही जो लोन को रीस्ट्रक्चर करना है। बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद द कंडीशंस दैट लेंडर, यानी जो पैसा दे रहा है, while restructuring the loans ऑफ डेप्टर्स। बिकॉज कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे डेप्टर्स, अब उनका बिजनेस बंद हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने लैंडर्स को रिक्वेस्ट करी है टू रीस्ट्रक्चर द लोन। रीस्ट्रक्चर द लोन मतलब होता है पेमेंट पीरियड बढ़ा देना, मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ा देना, इंटरेस्ट रेट कम कर देना, या फिर प्रिंसिपल रिपे करने के डेट बढ़ा देना, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया है कि आप उस डेप्टर की कोविड-19 से पहले ये सब पैरामीटर्स की क्या कंडीशन थी, उसके आधार पे आप काम करो, उसके आधार पे आप रीस्ट्रक्चर करो, ना कि कोविड-19 के दौरान उनका क्या कंडीशन था उस पे नहीं। कोविड-19 से पहले ये सारे पैरामीटर्स पे उसका क्या परफॉर्मेंस था, उसके आधार पे आप रीस्ट्रक्चर करो, ठीक है। It also recommended to the banks that they should consider financial state of the company prior to the COVID-19 pandemic to restructure the loan, जो मैंने अभी आपको बताया। The committee also has recommended to make the inter-creditor agreement mandatory in cases involving multiple lending institutions, ठीक है। अगर किसी भी लोन में मल्टीपल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, तो मतलब एसबीआई भी इन्वॉल्व है, आईसीआईसीआई भी इन्वॉल्व है, एचडीएफसी भी इन्वॉल्व है, तो इनके बीच में कंपल्सरीली इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसमें वेरियस कंडीशंस कि अगर एसबीआई का परसेंटेज लोन रिपे नहीं कर पाया तो आईसीआईसीआई का, तो इनके साथ क्या रिलेशन होगा, क्या आईसीआई को एसबीआई की रिस्क शेयर करनी पड़ेगी या फिर नहीं करनी पड़ेगी, ये सारे कंडीशन इसने बोला कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट भी मैंडेटरी होना चाहिए। Then comes your operation twist. Operation twist is basically simultaneous purchase and sale of government securities, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक लॉन्ग टर्म लोन्स चीपर, टू मेक लॉन्ग टर्म लोन्स चीपर, ठीक है, ताकि लोग हाउस परचेज करने के लिए, कार परचेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन लें, उनकी डिमांड इंक्रीज हो और इकोनॉमी फिर से बूस्टिंग वाले फेस में आ जाए, ठीक है, यानी रिकवरी वाले फेस में आ जाए फिर से। स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू लोअरिंग द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। अचीव्ड बाय सेलिंग द नियर टर्म ट्रेजरी, बाय सेलिंग द शॉर्ट टर्म, नियर टर्म मतलब हो जाएगा शॉर्ट टर्म ट्रेजरी टू बाय लॉन्गर डेटेड वंस, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो सेल करते हैं वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज सेल करते हैं, और जो ये परचेज करते हैं वो लॉन्ग टर्म परचेज करते हैं, ठीक है। जब वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज पब्लिक से परचेज करेंगे तो उसके बदले में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा भी देंगे ना, वो पैसा फिर बैंक्स आगे कस्टमर को दे सकता है। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स के पास अब अच्छा खासा क्रेडिट अवेलेबल रहेगा, तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे आगे लोन प्रोवाइड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका तो सिक्योर है यहाँ पे पैसा। और सेल करते हैं शॉर्ट टर्म, मतलब सेल का शॉर्ट टर्म इज ट्रेजरी बिल्स को सेल करते हैं ताकि शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा है, शॉर्ट टर्म वाली लिक्विडिटी आपकी बनी रहे, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाली लिक्विडिटी का बैलेंस बना रहे, बेसिकली समझ में आ गया।
जो वो आरबीआई जो सेल करेगी वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल करेगी और जो परचेज करेगी वो लॉन्ग टर्म परचेज करेगी, ठीक है। देन प्रायोरिटी, पीएसएल इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था इसका कंडीशन, ठीक है। अभी तक जो अब जो 8 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो पीएसएल के एरियाज में आती हैं वो है एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर सेक्टर्स। ये सब आप लोगों को याद रखना है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। क्या क्या है 8 ब्रॉड कैटेगरीज आर एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर सेक्टर्स, ठीक है। इसमें कुछ गाइडलाइंस इशू करी गई हैं। बैंक फाइनेंस अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स, लोन्स टू फार्मर्स टू इंस्टॉल सोलर पावर फॉर सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स, लोन फॉर सेटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस, ये सब पीएसएल कैटेगरी में आएगा। हाई वेटेज हैज बीन असाइंड टू इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स वेयर प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इज कंपैरेटिवली लो, उनको ज्यादा फोकस में रखना है। एग्रीकल्चर रिलेटेड में target prescribed for small and marginal farmers, weaker sections are being increased, high credit limit has been specified for FPOs, FPCs, loan limits for renewable energy have been doubled, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू अडेयर टू दिस रिवाइज्ड गाइडलाइंस, ठीक है। तो हर एक सेक्टर के लिए कुछ लोन लिमिट डिफाइंड है तो उनको डबल किया गया है, लोन लिमिट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाया गया है। इसके साथ आपका बैंक फाइनेंस टू अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स, वो आपका पीएसएल कैटेगरी में आएगा। जो फार्मर्स को सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल करने के लिए जो लोन दिया जा रहा है वो पीएसएल कैटेगरी में आएगा। लोन्स फॉर सेटिंग द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स वो पीएसएल कैटेगरी में आएगा। वो आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें पीएसएल कैटेगरी में कम क्रेडिट दिया गया है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। एग्रीकल्चर एरियाज में जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स और वीकर सेक्शन को टारगेट किया गया उनकी लिमिट बढ़ा दी गई है, ठीक है। अब इनको ज्यादा क्रेडिट दिया जाए। High credit limit has been specified for FPOs, for farmers, FPCs, ठीक है। एंड लोन लिमिट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी हैव बीन डबल्ड। ये कुछ फैक्ट्स आप लोग याद रखना। दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडिएट। आप इसमें अपना जो इंक्लूसिव ग्रोथ का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में उसमें ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो। इंक्लूसिव ग्रोथ, जो कि बिकॉज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पर्पज ही इंक्लूसिव ग्रोथ है, पर्पज ही इंक्लूसिव ग्रोथ है। क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना, इसका क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज करना इसका पर्पस है, ठीक है। सो हमारे ये करंट अफेयर्स का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आ रहा है ये सब पढ़ने में सॉरी, तो मेरा पर्पस बेसिकली इसमें यही है कि आप लोगों को मैं मैक्सिमम कवरेज ऑफ इकोनॉमिक करंट अफेयर्स दे दूं। ये सारी करंट अफेयर्स पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस से निकाल के मैं आप लोगों को अपने नोट्स से, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसमें से आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो इनको और कोशिश करो सिर्फ इन करंट अफेयर्स पे डिपेंड मत रहो कि किस हिसाब से। देखो, मेरा ओवरऑल पर्पस है कि ये पर्पस नहीं है कि आप सिर्फ यही करंट अफेयर्स पढ़ के एग्जाम में जाओ। मेरा ओवरऑल पर्पस है कि आप लोग ये समझ जाओ कि किस करंट अफेयर के किस टॉपिक में से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको वो सब चीजें समझ में आनी चाहिए। यार ये वाला टॉपिक इस सिलेबस के इस वाले टॉपिक में कवर हो सकता है, इसको उठाओ यहाँ से, ठीक है, इसको नोट्स में लिखो और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब चीजें आप इन वीडियोस इन लेक्चर से सीखो आप लोग, ठीक है। एकदम से रट्टाफिकेशन मत करना कि जो मैं दे रहा हूँ बस उन्हीं का रट्टाफिकेशन, नहीं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग दैट कि जो करंट अफेयर्स में दे रहा हूँ वो सिर्फ आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। उसके आधार पे उसको बेस मान के आप अपना करंट अफेयर्स स्किल्स खुद डेवलप करो आप लोग, ठीक है। ये तो मेरे करंट अफेयर्स स्किल्स है ना, ये तो मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने नॉलेज के बेसिस पे बनाओ और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई करंट अफेयर्स मिस करी है जो मुझे डिस्कस करनी चाहिए थी तो प्लीज वो मेरे को बताओ, वो मैं अपने नोट्स में भी ऐड करूंगा, ठीक है। तो दिस इज द टू वे प्रोसेस। करंट अफेयर्स लेक्चर्स हमेशा टू वे प्रोसेस होता है। यही नहीं कि जो फैकल्टी दे रहा है ऐसा नहीं है, आप लोग भी मेरे पास टॉपिक लेके आओ, सर ये भी टॉपिक था, क्या ये करंट अफेयर्स में होना चाहिए, तो मैं उसको देख लूंगा। करंट अफेयर्स में अगर होना चाहिए तो वो मैं अपने नोट में भी ऐड करूंगा और आप लोगों को भी ऐड कराऊंगा, ठीक है। इसलिए करंट अफेयर्स की क्लासेस में कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा कर लो और कम एक्टिवली अब पार्टिसिपेट करो, मतलब कहने का ओवरऑल ये पर्पस है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे अपन लोग यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट संडे को हम पार्ट 3 के साथ आएंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है।
Thank you, everyone.